After question number 12, question number 13. What is given in this question? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, look in this given diagram. A, B, C, D. Here, AB is the height of the lighthouse, which is 75 meter. From the top of the lighthouse, okay, from the top of the lighthouse, मैं यहाँ से angle of depression बनाते हुए two ships को देख रहा हूँ. These two ships are just exactly behind each other. एक दूसरे के just पीछे हैं. एक यहाँ पे C point पे है, तो just इससे पीछे वाला कौन सा है? D point पे है. From this point, if I am looking the back one जो अपने पास में D point पे जो ship है उसके अगर मैं top पे देख रहा हूँ, then the angle of depression is 30 degree. From this point, the angle of depression is 30 degree. This is your boat first. And from the boat second, for the boat second, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो angle of depression कितना है अपने पास में? 45 degree. Clear? Now, what you have to calculate? We have to calculate distance between these two ships. इन दोनों ships के बीच की distance आपको calculate करनी है. How can you calculate this thing? Let the distance between C to D. ये मैंने distance कितनी ले ली? X मीटर let कर लिया. Distance between C to D कितना हो गया? X मीटर. And the distance between B to C let as Y meter. Okay, if you are write the solution, then what you have to write, आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ. AB is the height of the lighthouse. From the top of the lighthouse, angle of depression at two ships D and C are 30 degree and 45 degree. इस point से ships के top पे जो angle of depression बन रहा है वो कितना अपने पास? 30 and 45. These two things you have to write. Then you know A is parallel to BC. That's why angle D is 30 degree and angle C is 45 degree by alternative interior angle. Because these two lines are parallel, this is your transversal line, that angle is 30, that's why ये angle भी कितना हो गया अपने पास में? 30. And these two lines again parallel and AC is your transversal line. So that angle 45 degree है, तो ये भी angle कितना हो जाएगा? 45 degree. Clear to you? Now we have to calculate now distance between these two ships. ये भी लिखना अपन को मेंशन क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप इज x मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन BC इज y मीटर. क्लियर टू यू? नाउ वी हैव टू लुक फॉर राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दिस केस. मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें कंसिडर करने हैं. नाउ वी नो AB इज परपेंडिकुलर विद द बेस. AB इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस. बेस क्या है अपने पास? BC. BD ले लो चाहे से. AB is perpendicular. Now we have two right angle triangle in this case, ABC, and second one is ABD. Now in triangle ABC, किसकी बात कर रहा हूं मैं? triangle ABC. There is given your base angle, so this is considered as base. ये क्या हो जाएगा आपका? perpendicular और ये hypotenuse. इसका कोई लॉजिक नहीं है अपने पास में, सीधा सीधा अपन को क्या लेना? perpendicular and base के बीच में रिलेशनशिप चाहिए. Then परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास? tan थीटा. यू नो वेरी वेल. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बोले सोना चांदी तोले. देन परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो जनरली क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. द वैल्यू ऑफ tan, द वैल्यू ऑफ थीटा हियर 45. यू हैव टू टेक एंगल C. Tan C is equals to perpendicular AB and what is your base? BC. Now tan C, the value of C is 45 degree. Place here 45 degree which is equals to AB. AB कितना है अपने पास में? 75 मीटर. And the distance BC, B से DC के बीच की distance कितनी है? Y मीटर. Now the value of tan 45 is 1 which is equals to 75 upon Y. The value of Y is equals to 75 meter. Can I say this is your equation number 1? Yes sir, definitely ये अपने पास में equation number 1 हो गई. Now in second case, in second right angle triangle, in triangle look this side, second right angle triangle कौन सा होगा? ABD. ABD. This is your another right angle triangle. Now AB is your height and BD is your base. Then again tan theta is equals to perpendicular upon base. The value of tan थीटा, थीटा कितना अपने पास में? इन दिस केस D, एंगल D है, यहाँ पे D आ गया विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितना होगा? AB. एंड व्हाट इज योर बेस? B to D. BD अपने पास में बेस हो गया. नाउ tan,
द वैल्यू ऑफ डी कितना अपने पास में 30 डिग्री इज इक्वल टू ए टू बी कितना है 75 मीटर एंड बी टू डी कितना अपने पास में x प्लस वाई, क्योंकि एंटायर लेंथ ऑफ बी डी कितनी हो जाएगी BC प्लस CD, तो BC कितना अपने पास y एंड CD कितना है x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई. नाउ tan 31 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई. नाउ x प्लस वाई मैन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू, अपन इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3 आ गया अपने पास में. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. वी हैव टू इक्वेशन इन दिस केस, दो वैल्यू मिसिंग अपने पास में x एंड y, तो दो इक्वेशंस बनेगी. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ y एंड प्लेस इन दिस इक्वेशन. तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो वैल्यू ऑफ y आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर रहा हूं. पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड. मैंने जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू प्लेस की तो कितना हो जाएगा x प्लस द वैल्यू ऑफ y 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3. ओके, नाउ x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 75 को उस साइड में शिफ्ट करना है. देन x इज इक्वल टू ट्रांसपोज जैसे ही करोगे उस साइड में तो क्या आ जाएगा नेगेटिव टर्म. ये कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75. नाउ व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू टर्म, दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है सर, यहाँ पे सर 75 कॉमन है मेरे पास में, तो टर्म क्या आ जाएगी रूट 3 माइनस 1, क्योंकि इसमें से 75 कॉमन आया तो यहाँ पे रहेगी रूट 3 और यहाँ पे क्या रहेगा 1. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टर्म वंस अगेन तो अपने पास में यही टर्म आएगा. इसको x मीटर, x क्या था, x क्या लेट किया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दीज टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है x. देन कितना आ गया अपने पास में 75 रूट 3 माइनस 1. देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या और गिवन होता है, देयर इज गिवन वैल्यू ऑफ रूट 3, तो वैल्यू ऑफ रूट 3 अपने पास में कितनी होती है 1.73 और मे बी 1.7 1.732, ये सारी वैल्यूज आपको मिल सकती है. तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू प्लेस करनी है, सब्ट्रैक्ट करना 1 से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 75. क्लियर टू यू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. Okay students, after question number 13, question number 14, what is given in this question? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Look this side, this is your given figure. मैंने पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि क्या सिचुएशन दे रखी है, उसको किस अकॉर्डिंग डायग्राम में अपन फ्रेम कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देन द AP is the height of the girl which is 1.2 मीटर. फ्रॉम दिस पॉइंट शी स्पॉट अ बैलून, इसने यहाँ से बैलून को स्पॉट किया. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसने अपनी आई से कितने डिग्री का बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. आफ्टर दिस, आफ्टर सम टाइम, द पोजीशन ऑफ बैलून, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन लिख सकता हूँ. ठीक है, एंड आफ्टर दिस ये अपनी कौन सी हो गई, सेकेंड पोजीशन हो गई अपने पास में. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपने पास में वो रिड्यूस हो रहा है 30 टू 60 डिग्री. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था. अब यहाँ पे जब मैं स्पॉट करूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया अपने पास में. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. यहाँ से मीन पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकंड तक जैसे ही बैलून मूव हुआ तो उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है. एंड वन मोर थिंग कि जो डिस्टेंस है, जो बैलून अपने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये नहीं मूव कर रहा, जैसे ऊपर जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट इस अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है. तो ये देखो ED जो मैंने लाइन बनाई ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. नाउ एंटायर हाइट ऑफ द बैलून, ग्राउंड से एंटायर हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 88.2 मीटर गिवन है. ओके, एंड द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर. ओके, जब मैं गर्ल की बात करता हूँ जैसे अगर मैं इसके ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया अपने पास में. एंड फ्रॉम दिस यहाँ से लेके बेस, मतलब मेरे टॉप से लेके मेरे आई से लेके ग्राउंड फ्लोर तक उतनी हाइट मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये कितना है 1.2 मीटर एंड एंटायर हाइट कितनी थी 88.2 मीटर. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 88.2 बाय
माइनस 1.2 मीटर। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा अपने पास में 87 मीटर। क्लियर टू यू? मीन्स जो अपने पास में एक्चुअल हाइट है फ्रॉम हर आई, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके, उस लड़की के हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एक्चुअल हाइट है वो कितनी हो जाएगी 87 मीटर। तो अपने पास में C2D ये कितना है 87 एंड E2B ये भी कितना है 87 मीटर। क्लियर टू यू? नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A पॉइंट से B पॉइंट तक, मीन्स जैसे ही अगर मैं बात करूं एज ए ऑब्जर्वर, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बैलून अभी मान लो इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये पोजीशन के ऊपर है, तो मैं जैसे ही देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास में कितना है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम ये बैलून फार अवे, इस इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है ये, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। जैसे मान लो यहाँ पे पोजीशन है तो 60, आफ्टर सम टाइम तो ये कुछ फार अवे डिस्टेंस पे चला जाएगा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री। तभी तो मैंने बताया था, अगर आप ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे फिक्स हो, मान लो ये आपकी इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 60 डिग्री। अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस और के ट्रेवल कर लेता तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फार अवे जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है अपने पास में, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाता है किसी भी बॉडी के, दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट राइज अप, मतलब बढ़ जाता है वहां पे। नाउ here look this side, ABE and ACD we have two right angle triangle। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे two right angle triangle है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन these two पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, विच आई लेट एज x मीटर, जिसको मैंने क्या लेट किया है x मीटर, एंड नेक्स्ट A to B की जो डिस्टेंस इसको मैंने क्या लेट कर लिया y मीटर लेट कर लिया। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन? वी हैव टू टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग हाइट एंड डिस्टेंस एज ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हो गए, ABE, एंड सेकेंड वन कौन सा हो गया ACD। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABE, ओके, आपको सारी चीजें जो सारी थिंग्स हैं वो सारी के सारे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में सब चीज मेंशन करना पड़ेगा। हियर AP इज द हाइट ऑफ द गर्ल, इट इज 1.2 मीटर गिवन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट E2Q, दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, दैट इज 88.2 मीटर, एंड फ्रॉम हर आई, the horizontal level of her eye to the top of the balloon, बैलून के टॉप तक की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 87 मीटर। देन हाउ कैन यू सॉल्व, 88.2 माइनस 1.2 मीटर विच इज इक्वल टू 87 मीटर। तो ये B से E तक का पोजीशन आ जाएगा, हाइट आ जाएगी ये। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ बैलून, सेकेंड पोजीशन आ जाएगी एट पॉइंट D। हियर the distance between these two position B to C, distance between these two position क्या हो जाएगा B to C, which is x meter, let as x meter, and the position between girl to the balloon, that is the first position। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया y मीटर लेट किया है। ओके, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में मेंशन करनी पड़ेगी। आफ्टर दिस हाउ कैन यू सॉल्व, वी हैव टू टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल ABE। हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, you know what is the value of perpendicular base, always as tan theta। then BE is your perpendicular and AB is your base, then tan, the value of theta is 60 degree for angle EAB is equals to perpendicular क्या आ जाएगा अपने पास में BE upon AB। now tan कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू BE, B to E की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 87 मीटर अपॉन AB, A से B तक की बात करूँ तो ये कितना है y मीटर। द वैल्यू ऑफ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट in right angle, in next right angle triangle ACD, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो अगेन tan theta is equals to perpendicular upon base tan, the value of theta here is 30 degree। how can you measure that, DAC, तो इसके लिए बोलूंगा मैं एंगल DAC which is equals to perpendicular क्या हो जाएगा यहाँ पे CD अपॉन base AC।
नाउ tan एंगल DAC कितना होगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD, C से D तक की हाइट कितनी है अपने पास में 87 अपॉन AC, A से C तक की लेंथ कितनी है अपने पास में x प्लस y. ओके, द वैल्यू ऑफ tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस y. ओके, नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस? नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, देन 87 रूट 3 इज इक्वल्स टू x प्लस y. Can I write x plus y is equals to 87 root 3? This is your equation number second. Now in this case what you have to calculate, हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना था, डिस्टेंस बिटवीन B to C जो है क्या अपने पास में एक्चुअली x है. So the value of y from the equation number 1 can I place in equation number second? Put the value of y from equation number first into इक्वेशन नंबर सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड में y की वैल्यू प्लेस की तो क्या आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस y कितना था अपने पास में 87 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 87 रूट 3. ओके, नाउ 87 रूट 3 इस साइड में चला जाएगा, शिफ्ट होगा, x इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3. क्या करना है मुझे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म, तो क्या आ जाएगा 87, ये रह जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. व्हाट यू हैव टू डू, कैन आई टेक एलसीएम इन दिस केस? देखो यहाँ पे क्या गिवन है 87, यहाँ पे रूट 3 अपॉन 1 है और यहाँ पे क्या है रूट 3. तो जैसे मैंने यहाँ पे 87 एज इट इज रखा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा रूट 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 कितना आ जाएगा 3 माइनस नेक्स्ट रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 क्या आएगा अपने पास में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे. सो वैल्यू आगे क्या कैलकुलेट हो रही है 87 अपॉन यहाँ पे कितना 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 एंड यू नो वेरी वेल कि डिवाइड में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3. इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो जैसे ही रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन न्यूमरेटर में 3 भी आ जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ गया 3. 87 3 से डिविजिबल है, यस. हाउ मेनी टाइम्स 29 टाइम, आई थिंक 29 टाइम्स हो जाएगा. 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 58 रूट 3 मीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन B टू C, B से C तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है अपने पास में 58 रूट 3 मीटर. ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम होगी उसमें शायद हो सकता है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आ जाए एग्जाम में, एज इट इज आ जाए पूरा. बहुत बार आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ये कई बार आ चुका. सो वंस अगेन लुक दिस साइड में इसको पूरा एक बार ढंग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ. एट द पॉइंट ऑफ P, a girl standing at the height 1.2 meter looking at the first balloon as the angle of elevation 60 degree. From the first position यहाँ पे angle of elevation कितना है 60 degree and for the second position angle of elevation कितना अपने पास में 30 degree. Entire height जो पूरी बैलून की ग्राउंड लेवल से जो entire height थी वो कितनी थी अपने पास में 88.2 मीटर. सो जो अपने पास में गर्ल की हाइट है कितनी है 1.2 मीटर. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग. तो जैसे मैंने 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर माइनस किया तो जिसके गर्ल के हॉरिजॉन्टल लेवल से दैट जो हाइट है डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट की बात कर रहा हूँ वो कितना अपने पास में 87 मीटर. क्लियर? कैसे आया 88.2 माइनस 1.2 कर दिया. नाउ हेयर वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल ABE. जैसे मैं ABE अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ तो BE इज द हाइट परपेंडिकुलर एंड AB इज योर बेस. वही tan यूज करेंगे. tan एंगल EAB के लिए बात करूँ तो यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, पुट हेयर 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन y. द वैल्यू ऑफ रूट tan 60 कितना होगा रूट 3. y इस साइड में आएगा, रूट 3 इधर शिफ्ट हो गया तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3. क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इन नेक्स्ट ट्रायंगल सेकंड केस जो अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा ACD. ACD के लिए अगर बात करता हूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan BAC. सो DAC के लिए बात करूँ तो DC अपने पास परपेंडिकुलर
एंड AC अपने पास में बेस, तो क्या आ जाएगा CD अपॉन AC, AC एंटायर हाइट कितनी है A से C तक के लिए, सॉरी CD कितना है अपने पास, C टू D तक कितना है 87 एंड AC A से C तक ये y और ये x, तो x प्लस वाई हो जाएगा। 1030 कितना होता है अपने पास में 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई कमिंग दिस साइड मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 87√3। कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैन आई प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू प्लेस करोगे तो y इक्वल्स टू कितना है 87/√3, तो y की जगह कितना आ जाएगा 87/√3, x प्लस 87/√3 इज इक्वल्स टू 87√3। नाउ दिस वैल्यू ट्रांसपोज अनदर साइड जैसे ही जाएगी तो क्या आ जाएगा अपने पास में 87√3 माइनस 87/√3, एल दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 87 कॉमन आ गया, रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी √3 माइनस 1/√3, टेकिंग एलसीएम दोनों में एलसीएम लिया तो √3 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो कितना आएगा 3। नाउ √3 डिवाइडेड बाय √3 कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, सो 87 into 2 upon √3, here √3 in divide, so what we have to do, we have to rationalize this term। तो जैसे डिनोमिनेटर में √3 दिया हुआ तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 87 into 2 √3, नाउ मल्टीप्लाई बाय √3 into √3 कितना आ जाएगा 3, 87 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा अपने पास में 29 into 2 कितना होता है 58√3 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो दीज टू पोजीशंस दे रखी है किसकी हॉट एयर जो बैलून्स की दे रखी है फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट होगी 58√3 मीटर। ओके फ्रेंड, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14 I will tell you question number 16. Question number 15 I will tell it to you tomorrow. What is given in this question? In this question there is given the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Look this side. This is CD is the height of the tower. For the top of this tower, the angle of elevation from 2 points which are 4 meter far away from the base and another one is 9 meter far away from this point, the top of the tower। अगर मैं angle of elevation की बात करूँ तो इसमें given नहीं है, आपको क्या बोला these two angles are complementary to each other। तो complementary क्या होता है the sum of two angle which is equals to 90 degree। अगर अपने पास दो एंगल का सम क्या हो which are 90 degree तो अपने पास में क्या बोल सकते हैं these two angles are complementary। तो मैंने अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा लेट किया, लेट दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल A प्लस एंगल B कितना अपने पास में 90 डिग्री। इफ आई लेट एंगल A एज थीटा देन एंगल B इज इक्वल्स टू 90, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, एंगल B कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। सो यू हैव टू प्रूव द हाइट ऑफ द टावर। ये आपको क्या करना है, प्रूव दैट इट इज 6 मीटर। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए अपने पास में 6 मीटर होनी चाहिए। हाउ कैन यू सॉल्व, इन ट्रायंगल वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ये 90 डिग्री है अपने पास में ACD एंड अनदर वन BCD। In triangle ACD, again perpendicular upon base क्या होता है tan theta, the value of theta here tan A is equals to perpendicular CD and base AC। The height of CD we don't know, let this height as h meter। इस height को मेरे को क्या let करना था h meter let कर लिया मैंने। The height is h अपॉन AC, A to C डिस्टेंस कितनी है अपने पास में 9 मीटर, 10 A, द वैल्यू ऑफ A वी डोंट नो, सो लेट एज थीटा। तो मैंने इसको लेट किया था थीटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अनदर राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD अगेन tan theta is equals to perpendicular upon base। okay, here tan, the value of theta is B, perpendicular कितना है CD H and base BC as 4। so इसको मैं इस अकॉर्डिंग नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा CD upon BC।
Now tan, the value of B 90 minus theta is equals to CD, C to D कितना है अपने पास में H, and BC, B से C तक की डिस्टेंस कितनी है अपने पास में 4. Here we know कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, जो प्रॉपर्टी है वो क्या गिवन है यहाँ पे देखना, tan 90 minus theta we can write this term as cot theta because tan and cot are complementary to each other. अगर कोई बेस एंगल थीटा के लिए अगर बात करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट के लिए बात कर रहा हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री tan के अंदर कितना हो जाएगा, इक्वल होगा. इट मीन्स tan 90 माइनस थीटा, अगर अपने पास में cot थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 माइनस थीटा, वो tan के साथ में दोनों रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल. तो tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा. So can I place tan theta, tan 90 minus theta as cot theta is equals to h upon 4. You know the value of cot theta. Value of cot theta can I write in this way? Cot theta is equals to 1 upon tan theta. Okay, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब ये बताया था cot theta equals to क्या होता है, 1 upon tan theta means reciprocal of tan is equals to cot. So can I change this cot theta as 1 upon tan theta is equals to h upon 4. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर सीधी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करनी है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 अपॉन h. द वैल्यू ऑफ tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 अपॉन h. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ लुक दिस साइड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे भी क्या है tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या गिवन है आपको, tan थीटा. बोथ आर इक्वल. सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2. You have to compare equation number 1 and 2. When you compare these two equations, यहाँ से कितना आ जाएगा, h upon 9 is equals to 4 upon h. Now what you have to do, cross multiply these two terms. जैसे ही दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36. The value of h is equals to square root of 36, यानी h is equals to 6 meter. The value means we have to prove this as height of this tower as 6 meter. यहाँ पे क्या हो गया ये, hence proved. Clear to you? Once again look this side. CD is the height of the tower. At the top of the tower, from 2 points which are 4 meter far away and 9 meter far away from the base or foot of the tower, the angle of elevation at the top is theta and 90 minus theta. Why? Because these two angles are complementary to each other. ये दोनों एंगल क्या दिए हुए थे, कॉम्प्लीमेंट्री. मैंने इस एंगल को क्या लेट कर लिया, थीटा, तो अनदर एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90. तो एंगल अगर एक थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. नाउ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ACD and BCD, in triangle ACD perpendicular upon base tan theta, we know very well perpendicular upon base क्या होता है, tan theta. तो यहाँ पे tan theta की वैल्यू कितनी थी, tan A is equals to CD, C to D ये कितना है H, एंड AC, A से C कितना है 9. तो ये वैल्यू थीटा, यहाँ पे मैंने लेट किया था, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लेट किया था, थीटा. सो यहाँ पे मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 9. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 कैसे आएगी, इन ट्रायंगल BCD. नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वंस अगेन tan B के लिए बात करूंगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, CD अपॉन BC. तो CD अपॉन BC, द वैल्यू ऑफ CD इज h and BC is 4 meter. When we place tan 90 minus theta is equals to h upon 4, you know very well tan 90 minus theta कितना होता है, cot theta. Cot theta equals to h upon 4. The value of cot theta is equals to 1 upon tan theta. Place here 1 upon tan theta is equals to h upon 4. What you have to do, cross multiply these two term. तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो tan theta इधर आ जाएगा, 4 upon h आ जाएगा, then tan theta equals to क्या आ गया, 4 upon h. Equation number 2. कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2. हेयर इज आल्सो tan थीटा. यहाँ पे भी देखा जाए तो भी क्या आ रहा है, tan थीटा, और यहाँ पे भी वैल्यू किसकी आ रही है, tan थीटा. सो कैन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन. हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही कंपेयर किया, h अपॉन 9 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से 4 अपॉन h, h इंटू h स्क्वायर इक्वल टू 36. व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म तो क्या आएगा, प्लस माइनस आता है. सर आपने तो प्लस माइनस लगाया नहीं, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 6 मीटर. -6 क्यों नहीं लिया सर आपने, बिकॉज ऑफ हाइट ऑलवेज कंसिडर इन पॉजिटिव.
साइन, हाइट हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ में आएगी, दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू 6 मीटर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव कि द हाइट ऑफ दिस टावर इज 6 मीटर। सो अपने पास में हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 6 मीटर। क्लियर टू यू? थैंक यू।